Hello students of class 5th, I am Snehapal, your science teacher, and today we are going to start the topic chapter 3rd, and the topic we will start bones and muscles. Okay, and you know very well, do you play in the playground? Do you play in the playground? Yes or no? Yes. And do you get hurt from anywhere when you are playing? Yes, when you are playing, do you get any hurt? Yes. So then you're injured. When you are injured, then where is the injury take place in our body? कहाँ पे वो चोट लगती है? Yes, tell me. Yes, very good. Yes. So first of all, when we get the hurt, then our bones and our muscles get injured. Okay, when we get hurt from anywhere, when we are walking and sleeping, so the bones are get hurted and muscles are also get affected when we are playing, walking, and any kind of work we will work on that time, and it will get hurted. Okay, now we discuss about bones according to your book. Yes, according to your book, here Riya was playing with her friends in the playground. Okay, and she slipped. Her parents immediately took her to a doctor. Where has she taken? कहाँ लेके गए उसे? डॉक्टर के पास. Riya was in pain. Why she was having pain? Why she has pain? Because the doctor asked them to get the X-ray of the affected part. क्या हुआ वहाँ पर? उसको अफेक्ट कहाँ किया? उसके बॉडी पार्ट को अफेक्ट किया, and it will take. Riya starting crying as she thought that doctor was going to give her an injection. रिया ने क्या किया? स्टार्ट किया क्राइंग करना स्टार्ट किया, एंड डॉक्टर वाज गिविंग टू हर एन इंजेक्शन. उन्होंने क्या दिया उसे? इंजेक्शन. व्हाई? द डॉक्टर calmed her down and told her that taking an X-ray is like taking a photograph without a camera. उन्होंने उसकी बॉडी का पिक कैसे कवर किया? with the help of X-ray. Okay, and doctor took the X-ray and put it on display. Riya was initially scared to see the image of her shoulder. रिया क्या देख के डर गई थी? Why she was scared? क्यों हो गई थी? Why was she scared? Because she sees the injury of her shoulder. वो अपने शोल्डर पर उसे देखकर क्या हो गई थी? स्केयर्ड हो गई थी. Yes. Now, as it was her own body image from within, he further explained her that the arm is made of many white colored hard substances known as bone. और उसके साथ साथ yes, उसने क्या ऑब्जर्व किया था? Many bones. क्या कलर था उनका? What was the color of these bones? White color also observed on the X-ray. Yes, now the doctor put Riya's arms in cast so that she could not move it. और वो क्या नहीं चल नहीं पा रही थी? Because she get hurted from where? कहाँ से hurt हुई थी? Yes, tell me anyone. Yes, very good. She get hurted from the playground. He also told her that the broken bone would be fine in a few days. डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया उसे? कहा कि जो broken bone है ये take us some time to join. So Riya was amazed. वो हैरान होगी to see the
images of her bones. The doctor explained her that several bones put together to make up the skeleton system in living beings. डॉक्टर ने क्या उसे एक्सप्लेन किया कि here we have our body has many bones which help bones made a skeleton. She now wants to explore more on the bones of human body. She was curiously about the what is the our body made what is the factors are involving for making a human body. So yes, now next topic, the human skeleton system. Now we take a next topic, the human skeleton system. Okay, now this is the topic of this is the next topic. This is the next topic. Have you ever imagined how would your body be without bones? Can you imagine our body without bones look like? Which shape, which color, which shape our body is without bones? किस shape में नजर आएगी? Yes, you would be floppy like a bean bag, floppy like our body without skeleton या without bones look like a floppy. Floppy means, yes, what is the meaning of floppy? Floppy, it means only the air within our body. Okay, in our body. Okay, now you would be floppy like a bean bag. You be able to walk? Can you imagine? You walk? Do you walk without any human skeleton system? Run, stand? No, without bones. Without bones, we can't run, stand and walk. You would just be a mass of skin falling on the floor like jelly. Even when our body have no skeleton system in our body look like a jelly. कैसे लगेगा? Look like a jelly. Why our body makes look like a jelly? Why? क्यों लगेगा ऐसे? Because does not frame of our body. Does not frame of our बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी को एक फ्रेम नहीं मिलता. हमारी बॉडी की जो फ्रेम ऑफ आवर बॉडी का मीन्स क्या होता है? शेप ऑफ आवर बॉडी. ओके, शेप ऑफ आवर बॉडी. ओके, हमारी बॉडी को शेप नहीं मिलती. यस, कैन यू सी हाउ अ मेटल और अ वुड फ्रेम हैज प्रोवाइडेड अ शेप टू द काइट एंड अम्ब्रेला इन द गिवन इमेजेस. क्या आप ये देख सकते हैं कि जो मेटल या कोई अम्ब्रेला है विदाउट शेप कैसे नजर आएगा? बिकॉज देयर हैज नो इंटरनल पार्ट या इंटरनल सिस्टम प्रेजेंट ऑन देम. इन दिस वे, अगर हमारी बॉडी के अंदर भी स्केलेटन प्रेजेंट ना हो, when the skeleton no skeleton present in our body, तो हमारी बॉडी कैसे नजर आएगी? अभी मैंने आपको जस्ट पहले क्लियर किया, look like a jelly. Okay, this is provided by a hard framework made of bones. हमारी बॉडी को जो हार्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. यस, हार्ड फ्रेमवर्क
of our body. Yes, hard framework of our body. Which system is provided? Yes, skeleton. कौन provide करता है? Skeleton system. Okay. Now it protects. What is the function? What is the function of the skeleton system? What is the function of skeleton system? Yes, now what is the function? क्या function होगा skeleton का? Yes, what is the function? First one, it gives shape. First of all, it gives shape of our body. ये हमारी body को क्या देता है? Shape देता है. Second, strength. बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. विदाउट स्केलेटन अवर बॉडी कंप्लीटली वीक. ओके, नाउ अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी मेड. यस, कैसे बनता है? यस, मेड ऑफ स्केलेटन. हाउ टू मेक ऑफ अ स्केलेटन? यस, ओके, हाउ टू मेक ऑफ अ स्केलेटन? कैसे बनता है? यस, फर्स्ट इट विल बी मेड फ्रॉम आवर बोन्स. किसकी हेल्प से बनता है ये स्केलेटन? किसकी हेल्प से बनता है? बोन्स की हेल्प से. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ओके, इट विल बी. यस, आई अगेन रिपीट दिस लाइन कि हाउ टू मेक आवर स्केलेटन. इट विल बी मेड फ्रॉम आवर बोन्स. किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? स्केलेटन मेकिंग की. कि स्केलेटन किसकी हेल्प से बनता है? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. Dear students of class 5th, I am Snehna Pal, your science teacher, and last time we have discussed about the skeleton and what is the framework in our skeleton. Now we are discussing about complete detail what is the skeleton, what are the organs present in the skeleton system. Now we discuss about the organs. In the skeleton system. First one is the skull. Second, shoulder blade. What is shoulder blade? Okay, and third is collarbone. Fourth, humerus. Yes. Fifth, what is the breastbone? Yes, breastbone. Sixth is the ribs. And seven are spine. सेवंथ नंबर पर क्या है? स्पाइन. Eighth, hip bone. Yes. Ninth, ulna. Yes. Tenth is the spine. Yes, 10th is the finger bone. 11th, femur. 12th is equal fibula. 12th is fibula. 13, tibia. 14, foot bone. Yes. What is the skull?
Skull is the base part of our head, where the hair are also present on our head. Shoulder blade. Shoulder blade, it means these are the shoulders, which helps to make a shoulder. Collarbone. Collarbone, it means our neck. Okay, now humerus. Humerus is in the length of the arm. Humerus is the bone of our arm. Okay, skull is the bone of our head. Bone of our head. इस तरह से bone ही है. शोल्डर ब्लेड क्या है? दिस इज द बोन ऑफ शोल्डर, जो हमारी शोल्डर ब्लेड की. ओके, नाउ ब्रेस्ट बोन. ब्रेस्ट बोन मतलब जिससे हम ब्रीथ करते हैं. ओके, ब्रीदिंग बोन मतलब ब्रेस्ट ब्रीदिंग बोन. ओके, दिस इज द ब्रीदिंग बोन. या ribs are the group of bones which make to our complete skeleton. Okay, spine क्या है यहाँ पर? Yes, spine is the backbone portion. To make a just we are also consider about the spine to take a bone of our front body and back body. स्पाइन का क्या यूज होता है? जो हमारी फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी के बीच का एक बोन होता है स्पाइन, जो हमारी फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी को क्रिएट करता है. ओके, नाउ हियर हिप बोन. हिप बोन क्या है? Everyone know very well what is the meaning of the hip? Yes, tell me anyone. Yes, hips की जो bone होती है, जैसे हम as the name suggest also bone of the hip, ये hip की bone होती है. ओके, and now ulna is, ये किस चीज की bone है? Yes, tell me anyone. Yes, this is the wrist, जो हमारा ये wrist part है. wrist के साथ वाला लेफ्ट आर्म हैंड जो होता है, जिसे हम रिस्ट बोन बोल सकते हैं. ओके, नाउ हेयर फिंगर बोन. फिंगर बोन एज द नेम ऑफ द बोन्स ऑफ फिंगर. फीमर दिस इज द लार्जेस्ट बोन. दिस इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है. ओके, एंड दिस पार्ट इज द फीमर. Okay, what is the name of this largest bone of our body? Femur. Femur is the to make a thigh. इससे क्या बनता है? हमारी thigh बनती है. ओके, ये thigh की bone होती है. ओके, now fibula. Fibula is the bone of our length of leg. ओके, फिबुला क्या है? एक्चुअल में हमारे लेग की वो लेंथ है जिससे हमारी लेग क्रिएट होती है. ओके, नाउ तिबिया. व्हाट इज द तिबिया? तिबिया इज द लोअर पोर्शन ऑफ लेग. लोअर पोर्शन ऑफ लेग. ओके, फुट बोन क्या होता है? यस, फिंगर्स. फुट बोन जो हमारी बोन कौन सी बनाती है? फीट को क्रिएट. फुट बोन क्या है यहाँ पर? यस, फुट बोन क्या बताता है? यस, एवरीवन टेल मी, फुट बोन क्या होता है? यस, टेल मी. यस, दिस इज द बोन ऑफ आवर फूट. ओके, हमारी फूट की बोन को क्रिएट करता है. दीज आर द skeleton organs. Okay, and everyone knows about this part and learn it very carefully. Okay, now we are discussing next topic in the next
video. Okay, have a nice day. Thanks. Hello dear students of class 5th, I am Snehna Pal, your science teacher. Last video we have already discussed about the bones, okay, skeleton and human skeleton system. Okay, now today we are going to discuss about the cartilage. Cartilage. Yes, everyone. Are you listen this word in any time? किसी भी टाइम आपने कभी ये सुना है? Have you ever seen listen this word cartilage? Okay, yes. आप लोगों ने कभी नोटिस किया है? Have you noticed your earlobe and your upper part of the ear? This is bone. Is it bone or not? ये bone है या नहीं? आपने कभी ऑब्जर्व किया है? ये देखो कितना सॉफ्ट होता है, कैसे मर्जी हम इसे कर लेते हैं ना, ट्विस्ट कैसे मर्जी ट्विस्ट कर लेते हैं. कई बार आपने नोटिस करा हो टीचर आपको पनिश भी करता है ना, करता है, आई नो पनिश करता है. कई बार आपने वो ईयर्स को ना पूरा ट्विस्ट कर देता है एंड देन ऑन दैट टाइम यू विल फील पेन. ओके, नाउ व्हाई आर यू फीलिंग दिस पेन? यस, बिकॉज कार्टिलेज इज नॉट एग्जैक्टली बोन. ये ना तो नॉट एग्जैक्टली बोन है, ओके, नॉट एग्जैक्टली बोन, ये बोन नहीं है, ओके, ये बोन है ही नहीं, ओके, दिस इज नॉट अ बोन. ये ना तो पूरी तरह से बोन है बट इट इज अ नॉट एग्जैक्टली बोन. ओके, यस, कार्टिलेज एक्चुअली क्या है तो ये टफ, ओके, ये टफ भी है, फ्लैक्सिबल है. आई नो ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है. देखो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स पोर्शन जो होते हैं, है ना, और जॉइंट्स पोर्शन के देखो मूवमेंट में ये भी थोड़े बहुत ये वाला हिस्सा जो हमारा होता है. ओके बेटा, तो ये जो पोर्शंस आपके होते हैं ये मोस्टली कुछ इसी तरीके से होते हैं. आप इनको इस तरह से जॉइंट कर सकते हो, पूरी तरह मूव तो नहीं कर सकते बट इस पॉइंट को हम कुछ ना कुछ फ्लैक्सिबल होते हैं. जैसे हमारे नीज पोर्शन, ओके, नीज पोर्शन का भी ये पार्ट जो होता है कुछ इसी तरीके से कि दे आर हेल्पिंग टू मूवमेंट. कार्टिलेज एक्चुअली इट इज़ अ टफ फ्लैक्सिबल स्केलेटल टिश्यू. ओके बेटा, स्केलेटल टिश्यू होता है एंड इट विल बी अवेलेबल इन द एंडोमेट्रियम which forms endoskeleton. Okay, which forms endoskeleton in large number of vertebrates. Yes, in your book not completely definition, that's why I am taking this definition according to me. Yes, cartilage actually क्या है देखो, this is the earlobe, okay, and this part is completely flexible. This is the upper part of our ear, this is completely flexible, okay, and very tough. आप ऐसे नहीं है कि इस बॉडी को मतलब टच करे बगैर ही बाहर निकल जाएंगे या क्या, इस पर जब भी कोई वर्किंग होगी यू विल फील सेंस, आपको फील सेंस होगी. ओके बेटा, सो दैट इज अ टफ बट फ्लैक्सिबल. टफ तो है बट फ्लैक्सिबल है. एंड हेयर देखो यहाँ कार्टिलेज, इट इज अ कार्टिलेज एक्चुअली इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहा है इसे हमने? यस, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज, कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट कनेक्ट्स बिकॉज इट कनेक्ट्स द टू बोन्स. दो बोन्स को ये कनेक्ट करने में हेल्प करता है. इट कनेक्ट्स द
या हेल्प टू कनेक्ट द टू बोन्स. ओके, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू because it helps to connect the two bones. देखो जैसे for example I will take a example like this is my arm, okay, and this is the first front hand and this is the arm. It will be a joint, it will be joint for this system is the completely joined with the कार्टिलेज. ये एक्चुअली दो बोन्स को जॉइंट कर रहा है इस पॉइंट पर. ओके, नाउ दिस स्केलेटन, दिस इज एंडोस्केलेटन. का क्या मीनिंग होता है? एंडोस्केलेटन मतलब आपके इनर साइड की डिस्कस कर रहा है कि इनर साइड में दिस कार्टिलेज ऑल्सो कनेक्ट द टू बोन्स एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है. देखो दिस इज टफ, ये टफ है, ऐसे तो नहीं है कि इसमें से ऐसे कुछ टच किए बगैर कोई चीज चली जाएगी. टफ, फ्लेक्सिबल. स्केलेटल टिश्यू ये हमारे अंदर वाले जॉइंट्स पोर्शंस को जॉइंट करने का काम कर रहा है. विच फॉर्म्स एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन मतलब इनर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी. ओके बेटा, ये एंडो का मतलब यही होता है. ओके, इनर साइड बात कर रहा होता है. इन लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स. यस, दिस वर्ड इज स्पेशल फॉर दिस वर्टिब्रेट. हियर आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस वर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो या इन द नेक्स्ट टॉपिक. ओके बेटा, vertebrates. Now in this time you just learn this word vertebrates. Okay, now we will discuss in the next topic this word. Okay, now next topic we will also discuss skeletal system. क्या होता है? yes, देखो कार्टिलेज जो है एक्चुअल में आपको देखो यहाँ पे लिखा है डू यू फील समथिंग. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन अगेन दिस टॉपिक. देखो यहाँ पे लिखा है डू यू फील समथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट एज यू प्रेस देम. कहता आप अपने इनर पोर्शन को या आउटर पोर्शन को टच कर और अंदर वाले हिस्से को टच करके देखिए कि अंदर वाला तो फिर भी सॉलिड है बट दिस इज द फ्लेक्सिबल. ओके, you do feel something on upper part of the ear which is not as soft as the ear lobe. देखो हमारे इसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ना, बट ऑल्सो नॉट एज हार्ड एज अ बोन, इजंट इट. देखो यहाँ पर कंप्लीट उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी. ओके, एंड दिस इज अ कार्टिलेज, जस्ट इतना क्लियर किया. ओके, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्योंकि कार्टिलेज एक्चुअली में क्या होता है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, कनेक्टिव टिश्यू कैसे है? बिकॉज इट हेल्प्स टू कनेक्ट द टू बोन्स. ठीक है ना, यहाँ पर देखो दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स. जॉइंट्स है ना ये पोर्शन हमारा, जो नी का ये पोर्शन है तो ये भी जॉइंट्स है. ओके, और यहाँ पर भी अगर हम डिस्कस करें तो ये पोर्शन हमारा जॉइंट्स में आता है. मोस्टली ये कार्टिलेज हमें कौन से पोर्शन में मिलेंगे? जहाँ पर जॉइंट्स अवेलेबल होंगे. जैसे इस हिस्से में भी अगर हम डिस्कस करें फिंगर्स के ये दो हिस्से, ठीक है, जहाँ पर हमें लगता है कि ये मूव हो रही है हमारी फिंगर्स, दैट इज द कार्टिलेज इज यूज्ड इन द एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन मतलब ये कार्टिलेज हमारे स्केलेटन के अंदर वाले पोर्शन में होता है. ओके बेटा, एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स का यहाँ क्या मीनिंग है? एक्चुअल में वर्टिब्रेट्स हमारे बहुत, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं मनके. ठीक है, वर्टिब्रेट्स एक्चुअली में यहाँ क्या है, मैनी नंबर ऑफ बोन्स की बात करी है. मैनी नंबर ऑफ bones. In this time we will also learn this topic, this word as according to the many number of bones, but we also discuss this word in the next topic also. Okay, now here we will discuss skeleton system. Yes, skeleton system. What is the skeleton system? Skeleton system we already discussed about the skeleton system. This is the skeleton. Last time we will also learn every part of this skeleton, and this is the skeleton system. We will also discuss according to the ancient time. Ancient time के according हम इसमें यहाँ पर discuss कर रहे हैं about 5000 years Indus Valley civilization. यहाँ पर जो skeleton system read out कर रहे हैं वो कौन से टाइम का ले रहे हैं? About 5000 years. ओके, कम से कम 5000 years पहले की बातें कर रहे हैं हम. ओके, एंड नाउ विच टाइम सिविलाइजेशन, कौन सा टाइम सिविलाइजेशन का चल रहा था? यस,
कौन से टाइम की बात कर रहा है वो? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, अबाउट 5000 ईयर्स बिफोर। जो टाइम यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है उस टाइम जो चल रहा था, जैसे अब इस टाइम बोलते थे कलयुग चल रहा है, तो कलयुग कौन सा, बट वी हैव टू लर्न इन द इंग्लिश मीनिंग मॉडर्न टाइम, ओके बेटा, मॉडर्न एडवांस टाइम। तो दैट इज द अबाउट 5000 ईयर्स एगो, हम बहुत समय पहले, हम 5000 पहले की बातें कर रहे हैं कि स्केलेटन सिस्टम उस टाइम कैसे हुआ करते थे ऑन दैट टाइम, और कौन सा वो 5000 ईयर्स बिफोर जो टाइमिंग चल रही थी, जो सिविलाइजेशन चल रहा था, या ये कह लीजिए टाइम चल रहा था, वो कौन सा टाइम था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। एंड हेयर यहाँ पर एक पिक दी गई है आपको, यस, लुक एट हेयर वेरी केयरफुली दिस पिक, स्केलेटन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दिस इज द इन दिस टाइम दिस स्केलेटन पिक जो ली गई है यहाँ पर, स्केलेटन जो पिक ली गई है वो कहाँ से ली गई है? राखीगिरी, ओके बेटा, राखीगिरी, ओके। एंड इन दिस टाइम इसे भी उन्होंने क्या करा? सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? इसे सीमेंट्री कर दिया, ओके बेटा, सीमेंट से कर दिया ताकि वो सेफ हो सके, प्रोटेक्ट हो सके, और आने वाले जो मॉडर्न पर्सन्स हैं उनको ये क्लियर आउट किया जा सके कि अबाउट 5 years ago many kinds of skeleton system on that time when the time Indus Valley civilization is वर्किंग, जब चल रहा था। ये देखो कहाँ से इन्होंने लिया? राखीगढ़ी में इस टाइम ये स्केलेटन आपको अवेलेबल होगा, और सीमेंट से इसे कम्प्लीटली कवर अप किया गया बिकॉज ताकि इसे सेव किया जा सके। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर अवेलेबल है इस टाइम? हरियाणा में, नॉट इन पंजाब, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन हरियाणा, वेयर वी हैव टू completely describe about the Indus Valley civilization in this way for this pic. Please listen, look at here. Now we are talking about the skeleton system. Now we are talking about the skeleton system. Yes. Skeleton system. Yes, skeleton system में first हम discuss कर रहे हैं according to skull. Yes, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द व्हाट इज द स्कल. स्कल एक्चुअली द बोन ऑफ आवर हेड, इन विच यू आवर द अपर पार्ट कंप्लीटली वर्किंग. इट मीन्स ये सारा पोर्शन नेक पार्ट तक हम ये कह सकते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्कल सिस्टम, ओके. द स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. यू नो वेरी वेल कि स्कल का क्या काम होता है? इट विल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. ये हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ओके. एंड नाउ हेयर आर स्कल्स पे बोन्स कितनी अवेलेबल है? देखो, हाउ मेनी बोन्स अवेलेबल हेयर? 22 बोन्स आर अवेलेबल इन दिस स्कल्स. एंड अपर जॉ, हमारी बॉडी के जो टीथ है, टीथ पोर्शन ऑलरेडी वी विल डिस्कस इन द, yes, this is the mouth, okay, and here are some teeth. ये teeth है, okay, and teeth also upper part of the teeth will be movable. ये movable है, okay, this is a movable but it is fixed. जो lower part of jaw है हमारा क्या है? फिक्स है. बट upper part of jaw, इट मीन्स ये अपर पार्ट जो हमारे ऊपर वाले जो दांत हैं, जिसे हम सिंपली सिंपल लैंग्वेज में, नाउ वी आर टॉकिंग इन द सिंपल लैंग्वेज, जो हमारे ऊपर वाले जो दांत हैं वो क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते, वो मूवेबल होते हैं बिकॉज वी चूइंग विद द हेल्प ऑफ द दिस पार्ट. हमें अपर पार्ट की हेल्प से ही चूइंग करते हैं, चबाते हैं, ओके. बट लोअर पार्ट ऑफ जॉ इज कम्प्लीटली फिक्स. देखो अपर पार्ट क्या है? मूवेबल है, ओके. But lower jaw is fixed. Is it clear? Yes, all the bones are fixed except for the lower jaw bone. लिखा ना? The movement of lower jaw helps us to eat and speak. तो देखो यहाँ पर क्या बोला है उसने?
कि जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द जॉ है वो फिक्स क्यों रखा जाता है, बिकॉज वी वांट टू ईट एंड स्पीक। किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प्स टू ईट एंड स्पीक। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट, द फिक्स्ड बोन इन द स्कल प्रोटेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और देखो, और इसके अलावा किन पार्ट्स को ब्रेन प्रॉपर जो स्कल है वो प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट पार्ट इज ब्रेन। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि विदाउट ब्रेन आवर बॉडी विल नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड वी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग एनीवन। ओके, एंड हेयर स्कल बोन्स आर जस्ट अंडर द स्किन ऑफ आवर हेड। देखो, हमारी जो स्कल बोन्स होती है एक्चुअल में ये है तो स्कल बोन ही ना, और इसे अगर प्रोटेक्ट कवर अप करा हुआ है वो किससे करा हुआ है, स्किन से। हमारी पूरी बॉडी को एक स्किन दी गई है ब्लैक या वाइट कलर की, या मिक्सिंग सम कुछ बीचिंग कलर में, जो गेहुआ कलर बोल देते हैं, सम मिक्सिंग कलर। ओके, एज शोन इन द इमेज द होल्स ऑन द स्कल प्रोवाइड ऑफ आवर। देखो, अब इसके अलावा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्कल बोन्स, बट ऑल्सो आईज। देखो, क्योंकि स्कल बोन्स में मैंने ऑलरेडी बोला है कि हमारा ये लगभग सारा हिस्सा ही किसमें काउंट होता है, स्कल बोन्स में आता है। देयर आर द 22 बोन्स ऑल्सो डिस्कस्ड। ओके, आईज, नॉस्ट्रिल्स, ear and mouth. Okay, this is the topic of our skull bone. देखो, first of all I also explain again this topic, skull bone. Skull bone is the upper part of our body in which belongs to eyes, ear, nose and completely up to our neck. नेक तक हम इसे काउंट कर सकते हैं, बट नॉट कम्प्लीटली नेक, बट जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक। ओके, एंड इट विल बी प्रोटेक्ट फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करता है वो है ब्रेन। ओके, एंड एज वेल एज सम पार्ट्स also protect by the skull bone. And how many bones are present in the skull bone? Only 22 bones. In this way, in which upper jaw and all our body, our skull bone has the movable, okay, for working. Lower jaw is only just one bone will be fixed because we want to eat and speak. इस वजह से इसे कर रहे हैं क्योंकि हमें बोलना भी होता है और खाना होता है, इसीलिए हमारे लोअर जॉ पोर्शन को क्या रखा जाता है, फिक्स। ओके, नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट टीथ आर फिक्स्ड इनटू द जॉ बोन्स। देखो, हाँ, एक चीज और, यस, वन थिंग इज लेफ्ट हियर। देखो, बोथ जॉज आर कंबाइंड विद अ सिंपल वन जॉइंट। देखो, एक वन जॉइंट से ही क्या होता है, कंबाइन होता है। अपर पार्ट जो है वो मूवेबल है, बट लोअर पार्ट इज नॉट मूवेबल, बट बोथ द जॉज आर कंप्लीटली जॉइंट विद वन जॉइंट। दोनों के दोनों हमारे एक जॉइंट से कनेक्ट होते हैं, बट इट इज अ मूवेबल, बट इट्स नॉट मूवेबल। बिकॉज listen very careful about this topic, otherwise you can't understand because some portions are missing here. Okay beta, so now we talking about next topic is ribs. Now we come to the next topic, ribs. Now we come to the next topic, ribs. Ribs actually, when we take a deep breath, so then we have to observe ourselves in our stomach area. कि then some bones are in the stretch in the upward direction, then we release our breathing, then our body relax, and some bones are relaxed down in the downward direction. Okay, now take a deep breath and hold it for a little while. We'll feel you चेस्ट बोन, अपनी चेस्ट बोन को आप फील करिए, टच करिए बॉडी की हेल्प से, उसे प्रेस करके देखिए। यहाँ पर आप टच करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ यहाँ पर मूव हो रहा है। ओके, नाउ काउंट एज मैनी रिब्स bones of chest as possible. Observe the diagram. Yes, observe the diagram. Look like this. This diagram is here. Look like this.
व्हेन वी टेक अ डीप ब्रीथ। अगर हम ऊपर की तरफ लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें नजर आती है। एंड देन व्हेन वी रिलीज आवर बोन्स, ओके, देन आवर रिब्स लुक लाइक दिस। ये जब कब है, टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ। हमारी जो रिब्स होती हैं उनकी जो बोन्स पार्ट होता है वो कुछ इस तरह से नजर आता है। और जब हम इसे स्लो डाउन कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, रिलैक्स, व्हेन वी रिलैक्सिंग इन आवर बॉडी देन आवर बॉडी विल लाइक दिस, वो हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। ओके, एंड दिस रिब्स, यस आई विल टेक ओनली वन रिब पोर्शन, ओके, नॉट अ टेक डीप ब्रीथ ओनली। यस, दिस इज द, हेयर आर द सम रिब्स, 12 पेयर। इस तरह से कितने पेयर्स नजर आते हैं, 12 पेयर्स ऑफ कॉलम्स नजर आते हैं। ओके, हमें वी हैव सीन द 12 कॉलम्स, ओके, इन द रिब पोर्शन। एंड स्टर्नम, सेकंड जो ये पार्ट है इसे बोलते हैं स्टर्नम। यस, फ्रंट पार्ट ऑफ द रिब्स बैकबोन, दैट इज द sternum, but back portion, this is the second name of also breast bone भी बोलते हैं कई बार हम इसे, कौन सी बोन बोलते हैं, breast bone, ओके। एंड sternum एंड flat bone, देखो 11 पेयर्स, 12 पेयर्स में से 11 पेयर्स will connected to back, हमारे बैक से कनेक्ट होती हैं। ओके, जो 11 पेयर ऑफ रिब्स, जो बोन्स हमें यहाँ नजर आ रही है, दे विल बी कनेक्टेड टू द बैक पोर्शन, ओके, दैट इज कॉल्ड द स्टर्नम्स, या हम इसे यहाँ पर ये बोल देते हैं फ्लैट बोन्स। कौन से बोन्स बोलना है, फ्लैट बोन्स, दीज आर द फ्लैट बोन्स, मतलब 11 पेयर ऑफ बोन आर कॉल्ड द फ्लैट बोन्स। ओके, जस्ट ओनली वन रिमेनिंग वन, जो एक रह गया आपका रिमेनिंग वन पेयर ऑफ बोन इज नॉट अटैच्ड, ओके बेटा, अटैच टू आवर बैक, वो हमारे बैक से अटैच नहीं होता, बैक पोर्शन से अटैच नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस पेयर इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। देखो यहाँ फ्लैट बोन्स बोलना है तो फ्लैट बोन्स बोल दो या रिब्स बोल दो, ओके बेटा। And here this is the floating ribs, okay beta, remaining one pair is not attached to our back, देखो that's why we are moving, look like this here, just look like this, कि जब हम इस तरह मूव कर रहे हैं यहाँ तक, it means हमारा जो 12th पेयर है, पेयर ऑफ रिब है, will not attach to our backbone, that's why we can't move like this, okay। That's why one pair of rib is called the floating ribs and first 11 pairs of the ribs are called the flat ribs। And ये किससे हमारी हेल्प करता है, रिब्स किन चीजों से हेल्प करता है हमारी, यस, हेल्प किससे सेव करता है हमें, फर्स्ट इट विल ऑल्सो हेल्प फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें सेव करता है, हेल्प्स टू सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब उन्हें सेव करने में हेल्प करता है। वो कौन कौन से पोर्शन है, फर्स्ट है हार्ट एंड लंग्स, ओके, हार्ट एंड लंग्स बोथ आर द प्रेजेंट इन द रिब्स केज, इस केज के अंदर अवेलेबल होते हैं एंड दे विल बी प्रोटेक्टेड बाय द रिब, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।